اور اگر کاش وہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آتے اور اس پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تم سب لوگوں سے زیادہ دشمن پاؤ گے اہل ایمان مسلمانوں کا یہود کو اور مشرکوں کو، اور البتہ تم مسلمانوں کے لیے دوستی میں سب سے قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں سے عالم اور درویش ہے اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو دیکھے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہے، ابل پڑتی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس ہمیں گواہوں ایمان لانے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ۔ پس جو انہوں نے کہا اس کے بدلے اللہ نے انہیں باغات دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے وہ لوگوں سے جو ایمان لائے، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی وہ حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، وہ جس کو تم مانتے ہو۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، نہیں پکڑتا تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہے، پکڑتا ہے جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا پختہ قسم پر، سو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک گردن غلام آزاد کرنا۔ پس جو یہ نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بنایا کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اس کے سوا نہیں کہ شراب، جوا اور بت اور پاسے پھال کے 3 ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح، کامیابی اور نجات پاؤ۔ اس کے سوا نہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے سے دشمنی ڈالے اور تمہارے روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ پس کیا تم باز آؤ گے اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بچتے رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف کھول کر واضح طور پر پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ آئندہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر وہ ڈرے اور ایمان لائے، پھر وہ ڈرے اور انہوں نے نیکوکاری کی، اور اللہ کے نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں، تاکہ اللہ معلوم کر لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو اس کے بعد جن نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو اس کو جان بوجھ کر مارے تو جو وہ مارے اس کے برابر بدلہ ہے۔ مویشی میں سے جس کا تم میں سے 2 معتبر فیصلہ کرے، کھانے
कावा नियाज पहुँचाए या इसका कफारा है खाना चंद मोहताजों का या उसके बराबर रोजे रखना ताकि वह अपने की सज़ा चखे। अल्लाह ने माफ़ किया जो पहले हो चुका और जो फिर करे तो अल्लाह उससे बदला लेगा और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए हलाल किया गया दरिया का शिकार और उसका खाना तुम्हारे फ़ायदे के लिए है और मुसाफिरों के लिए, और तुम पर खुश्की जंगल का शिकार हराम किया गया जब तक तुम हालत एहराम में हो, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम जमा किए जाओगे। अल्लाह ने बनाया काबा एहतराम वाला घर लोगों के लिए, क़ियामत का 22 और हुर्मत वाले महीने और कुर्बानी और गले में पट्टा कुर्बानी की अलामत। पड़े हुए जानवर यह इसलिए है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह को मालूम है जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, और यह कि अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, और यह कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह जानता है जो जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। कह दीजिए बराबर नहीं नापाक और पाक, खाह तुम्हें नापाक की कसरत अच्छी लगे, सो ये अक्ल वालों अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह कामयाबी और नजात पाओ। ऐ ईमान वालों, न पूछो उन चीज़ों के मुतल्लिक जो तुम्हारे लिए जाहिर किए जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर उनके मुतल्लिक ऐसे वक्त पूछेंगे जब कुरान नाजिल किया जा रहा है तो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाएगी। अल्लाह ने उससे दरगुजर की और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। इसी किस्म के सवाल तुमसे कब्ल एक कौम ने पूछा, फिर वह उससे मुनकिर हो गए। अल्लाह ने नहीं बनाया बहिरा और न साइबा और न वसीला और न हाम, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया वह अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और उनके अक्सर अक्ल नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाए आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो वह कहते हैं हमारे लिए वह काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। तो क्या उस सूरत में भी कि उनके बाप दादा कुछ न जानते हो और न हिदायत याफ्ता हो? ऐ ईमान वालों, तुम अपनी जानों की फिक्र लाजिम है जब तुम हिदायत पर हो, तो जो गुमराह हुआ तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकेगा। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटाना है, फिर वह तुम्हें जतला देगा जो तुम करते थे। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे दरमियान गवाही का तरीका यह है कि जब तुम में से किसी को मौत आए, वसीयत के वक्त तुम में से 2 मोतबर शख्स हो या तुम्हारे सिवा 2, और अगर तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो फिर तुम्हें मौत की मुसीबत पहुँचे, उन दोनों को रोक लो। नमाज के बाद अगर तुम्हें शक हो तो दोनों अल्लाह की कसम खाए कि हम उसके इब्ज हो कोई कीमत मोल नहीं लेते, खा रिश्तेदार हो, और हम अल्लाह की गवाही नहीं छुपाते, वरना हम बेशक गुनाहगार में से हैं। फिर अगर उसकी खबर हो जाए कि वह दोनों गुनाह से सजवार हुए हैं तो उनकी जगह उनमें से 2 और खड़े हो जिनका हक मारना चाहता, जो सबसे ज़्यादा मैयत के करीब हो। फिर वह अल्लाह की कसम खाए कि हमारी गवाही उन दोनों की गवाही से ज़्यादा सही है और हमने ज्यादती नहीं की, वरना उस सूरत में हम बेशक जालिमों में से होंगे। यह करीब तर है कि वह गवाही उसके सही तरीके पर अदा करे या वह डरे कि हमारी कसम उनकी कसम के बाद रद्द कर दी जाएगी। और अल्लाह से डरो और सुनो, और अल्लाह नहीं हिदायत देता नाफरमान कौम को।
अल्लाह जिस दिन रसूलों को जमा करेगा फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब मिला था। वह कहेंगे हमें खबर नहीं, बेशक तू छुपी बातों को जानने वाला है। जब अल्लाह ने कहा ए ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, मेरी नेमत अपने ऊपर और अपनी वालिदा पर याद करो जब मैंने रूह पाक जिब्राइल से तुम्हारी मदद की, तुम लोगों से पंधोड़े में और बुढ़ापे में बातें करते, और जब मैंने तुम्हें सिखाई किताब और हिकमत और तौरात और इंजील, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाते थे फिर उसमें फूंक मारते थे तो वह हो जाता मेरे हुक्म से उड़ने वाला, और तुम मादरजात अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से शिफा देते थे, और जब तुम मुर्दे को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करते थे, और जब मैंने बनी इजराइल को तुमसे रोका जब तुम खुली निशानियों के साथ उनके पास आए तो काफिरों ने उनमें से कहा यह सिर्फ खुला जादू है, और जब मैंने हवारियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा हम ईमान लाएं और आप गवाह रहे, बेशक हम फरमादार हैं। जब हवारियों ने कहा ए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, क्या तेरा रब यह कर सकता है कि हम पर आसमान से खाना उतारे? उसने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो और हम जान ले कि तुमने हमसे सच कहा और हम उस पर गवाह रहें। ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से खान उतार कि हमारे पहलों और पिछलों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रोजी दे, तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। अल्लाह ने कहा बेशक मैं वह तुम पर उतारूंगा, फिर उसके बाद तुम में से जो नाशुक्री करेगा तो मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा जो न अजाब दूंगा जहान वालों में से किसी को। और जब अल्लाह ने कहा ए ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद ठहरा लो? उसने कहा तू पाक है, मेरे लिए रवा नहीं कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने यह कहा होता तो तुझे जरूर उसका इल्म होता। तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है, बेशक तू छुपी बातों को जानने वाला है। मैंने उन्हें नहीं कहा मगर सिर्फ वह जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और मैं जब तक उनमें से रहा उन पर खबरदार बाखबर था। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो उन पर तू निगरबान था और तू हर शय से बाखबर है। अगर तू उन्हें अजाब दे तो बेशक वह तेरे बंदे हैं, और अगर तू बख्श दे उनको तो बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया यह दिन है कि सच्चों को नफ़ा देगा, उनका सच उनके लिए बागात है जिनके नीचे नहरें बहती है, वह उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह राजी हुआ उनसे और वह राजी हुए उनसे, यह बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के लिए है बादशाह आसमानों की और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है, और वह हर शय पर कादिर है।